ना। तो फंजाई हमारा खत्म हो गया था। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोराइजा। ओके। तो माइक्रोराइजा होता क्या है? इट इज symbiotic relationship between roots of higher plant and fungal hyphae, which involves bidirectional flow of nutrient. मैंने कहा बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब क्या हुआ कि प्लांट पार्टनर विल प्रोवाइड ऑर्गेनिक फूड टू द फंगल पार्टनर, एंड इन रिटर्न fungal partner helps in absorption of inorganic nutrient from the soil, especially phosphorus. Third one, it is symbiotic relationship. It is symbiotic relationship between fungi and roots of higher plants. It is symbiotic relationship between fungi and roots of higher plant, which involves which involves bidirectional flow of nutrient, which involves bidirectional flow of nutrient, that is 8:15 बोला था मैंने क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। विच इन्वॉल्व्स bidirectional flow of nutrient, that is plant partner plant partner provides organic food plant partner provides organic food, whereas fungal partner helps in absorption of inorganic nutrient, especially phosphorus स्पेशली फॉस्फोरस। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है, माइक्रोराइजल रिलेशनशिप है, इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर दोज प्लांट विच लैक्स रूट हेयर, दैट इज जिम्नोस्पर्म। ठीक है, थोड़ा डाउन दिस रिलेशनशिप, नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिलेशनशिप is especially important for those plants, especially important for those plants which lacks root hair, that is gymnosperm, that is gymnosperm। हाँ नवीन, कुछ पूछ रहे थे आप? नवीन शर्मा। मुनीश सर, किसने कहा ड्यूट्रोमाइसिटीज लेफ्ट है? ड्यूट्रोमाइसिटीज तो मैंने सबसे पहले कराया था फंजाई में। नोट्स देखो अपना, करवाया ना मैंने ड्यूट्रोमाइसिटीज भाई लोग। हाँ करवा दिया है। नोट्स देखना, करवा दिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ड्यूट्रोमाइसिटीज ही करवाता फंजाई में, पता नहीं क्यों, लेकिन करवाता हूँ। आई लाइक ड्यूट्रोमाइसिटीज। ओके ना।
मैंने क्या बोला? This relationship is especially important for those plants which lacks root hair, that is gymnosperm. Now, next one लिखिए. One of the common fungus, one of the common fungus to form mycorrhizal relationship is glomus. One of the common fungus to form mycorrhizal relationship is glomus. One of the common fungus to form mycorrhizal relationship is glomus. 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 ठीक है. Now, माइकोराइजा को हम लोग ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ फंगल हाइफी इन रूट. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. माइकोराइजा इज डिवाइडेड इनटू two different types on the basis of location of location of fungal hyphae in root. First write down ectomycorrhiza. ECTO. Ectomycorrhiza. ठीक है. एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होता है इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ रूट. ठीक है, फंगल हाइफी ऑन सरफेस and it forms net like structure that is referred as Hartig net. Write down ectomycorrhiza. In this fungal hyphae is present on the surface of root. In this fungal hyphae is present on the surface of root and it forms a network known as Hartig net. Hartig, Hartig net, net. It forms a network known as Hartig net. ठीक. Now, next एंडोमाइकोराइजा. ठीक है, तो एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो फंगल हाइफी होता है इट एंटर्स इनसाइड द रूट. ठीक है, एंड विद इन रूट. नाउ क्या कर रहे थे? लास्ट पॉइंट क्या कर रहे थे? आवाज आ रही है? हाँ, तो एंडोमाइकोराइजा में क्या होता है कि जो हमारा फंगल हाइफी है इट एंटर्स इनसाइड द रूट. ठीक है, and within the root it will show extensive branching. Within the root it will show extensive branching and forms small tree like structure. This small tree like structure is known as arbuscular. We call it arbuscular.
which produces large number of vesicle, small spherical body. Okay, this is vesicle, and that's why it is referred as vesicular arbuscular mycorrhiza or VAM. ठीक है, write down. In this fungal hyphae enters inside the root. In this fungal hyphae enters inside the root shows extensive branching and forms small tree-like structure and forms small tree-like structure known as arbuscular, which produces large number of vesicles, That's why it is known as vesicular arbuscular mycorrhiza. Vesicular arbuscular mycorrhiza और वैम. तो हार्टिंग नेट जो है वो एक्टोमाइकोराइजा के लिए है और वैम जो है वो एंडोमाइकोराइजा के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा. सिग्निफिकेंस ऑफ माइकोराइजा. फर्स्ट लिखिए it increases surface area of absorption. It increases surface area of absorption. Second लिखिए it helps in absorption of inorganic nutrient. It helps in absorption of inorganic nutrient especially phosphorus. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए it provides resistance against abiotic stress such as
drought, and salinity. Abiotic stress such as drought and salinity, and biotic stress such as soil-borne pathogen such as soil-borne pathogen. मैं इसको समझा देता हूं इस पॉइंट को। देखो, ये वाटी में नॉन लिविंग स्ट्रेस की बात कर रहा है। अगर मान लो सूखा पड़ता है, पानी कम हो जाता है सॉइल में, तो फंगल लाइफी दूर दूर तक चला जाएगा और सराउंडिंग से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा। ठीक है, तो वो एबायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, बायोटिक स्ट्रेस, ठीक है, सॉइल पैथोजन, तो फंजाई जो है वो रूट में रह रहा है, रूट उसका घर है। ठीक है, उस घर में वो किसी को घुसने नहीं देगा। तो मतलब अगर कोई पैथोजन रूट को अटैक कर रहा है, फंजाई कोई पैथोजेनिक फंगस, तो वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, सेलिनिटी, अगर मान लो सॉइल में सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा प्लांट। तो होता क्या है कि फंगल हाइफी अपने बॉडी में ज्यादा अमाउंट में सॉल्ट को स्टोर कर लेता है। तो क्या हुआ, सॉइल से ज्यादा फंगल हाइफी के बॉडी में सॉल्ट है, तो पानी सॉइल से किस में आएगा, फंगल हाइफी में, उससे फिर प्लांट में चला जाएगा। तो सेलिनिटी से भी उसको रेजिस्टेंस मिल गया। समझ में आई ये पॉइंट? चलिए, ना नेक्स्ट हेडिंग इज लाइकन। नेक्स्ट हेडिंग इज लाइकन। नेक्स्ट इज लाइकन। लाइकन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है, तो इसलिए मैं नया वाला डेफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके ना, तो राइट डाउन लाइकन। तो लाइकन बेसिकली है क्या? इट इज symbiotic relationship between phycobiont, that is algae, and mycobiont. ठीक है, phycobiont एंड mycobiont, that is algae and fungi. ये जो phycobiont होता है, it prepares food, and mycobiont helps in absorption, anchorage, and provides protection. Right on. It is symbiotic relationship between. It is symbiotic relationship between phycobiont, in bracket write down algae, and mycobiont, in bracket write down fungi, where where phycobiont or algae, where phycobiont or algae prepares food, where phycobiont or algae prepares food, whereas mycobiont helps in absorption, encourage, and provides protection. Absorption, encourage, and provides protection. ठीक है? Whereas mycobiont helps in absorption,
encourage and provide protection. Encourage means जकड़ के रखना, किसी चीज पकड़ के रखना है, ठीक है. F जो ऑप्शन encourage and provide protection. ठीक है. जब आप थैलस को देखोगे, ठीक है, जब आप लाइकेन के थैलस को देखोगे तो what you will observe, less than 5% thallus is contributed by phycoband and more than 95% of thallus is contributed by mycoband. Write down. Write down. In lichen, less than 5% thallus, is contributed by phycoband and more than 95% thallus is contributed by fungi. ठीक है. अगला पॉइंट, ये पॉइंट समझ लीजिए फिर लिखिए. कुछ बायोलॉजिस्ट लोगों का क्या मानना है कि जो रिलेशनशिप है algae और फंजाई के बीच में, इट इज नॉट सिम्बायोटिक. थैलस का मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी. थैलस वर्ड का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे डिफरेंशिएशन ना हो. जैसे प्लांट में रूट, शूट, स्टेम, लीफ वगैरह है, वैसा अगर है तो डिफरेंशिएटेड है, वो थैलॉइड नहीं है. थैलॉइड का मतलब जहां पे डिफरेंशिएशन ना हो, ठीक है ना. कुछ बायोलॉजिस्टों का ये मानना है कि जो रिलेशनशिप है algae और फंजाई के बीच में, इट इज नॉट सिम्बायोटिक. रिलेशनशिप क्या नहीं है? सिम्बायोटिक नहीं है. इट इज ए मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप. मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप. ठीक है. ये मास्टर स्लेव क्या है? ये जो कहते हैं कि जो माइक्रोबायंट या फंजाई है, इट इज एक्टिंग एज ए मास्टर, मालिक की तरह एक्ट करना, और ये जो फाइकोबायंट या algae है, इट इज एक्टिंग एज स्लेव. मतलब फंजाई जो है algae को कंट्रोल करता है. एंड फॉर दिस दे यूज टर्म हेलोटिज्म. ये आप तब बताइएगा जब आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाएगा, नहीं तो आपके लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. राइट डाउन. According to some biologists, relationship between algae and fungi, in lichen is not symbiotic, but it is a master and slave relationship. But it is a master, according to some biologists, relationship between algae and fungi in lichen is not symbiotic, but it is master and slave relationship. Where fungal partner,
Fungal partner acts as master, where fungal partner acts as master, and algal partner acts as slave. Algal partner acts as slave. and for this, and for this, they use term helotism. For this, they use term helotism. 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 ठीक है, हम लाइकन को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर थैलस स्ट्रक्चर. मतलब उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पे लाइकन को 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से 3 टाइप है? ठीक है, पहला है क्रस्टोज. क्रस्ट का मतलब क्या होता है? एक लेयर. ठीक है, तो क्रस्टोज लाइकेन में क्या होता है? दे आर क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम. ठीक है, कि जहां पे ये ग्रो कर रहा है उससे वो चिपका हुआ होगा. ठीक है, दैट इज क्रस्टोज. ओके, दूसरा फोलियोज. फोलियोज का मतलब होता है लीफ. तो हियर थैलस इज लीफ लाइक. ठीक है, तीसरा होता है फ्रूटिकोस. फ्रूटिकोस का मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइकेन जो है उसका थैलस एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है. फ्रूटिफिकेशन, ब्रांचिंग है उसमें. थर्ड, on the basis of thallus structure, on the basis of thallus structure, lichen is divided into 3 different types. Lichen is divided into 3 different types. First item, crustose. First item, crustose. Here, lichen thallus is here. Lichen thallus is closely oppressed. APPRESSED. Here, lichen thallus is closely oppressed. Oppressed मतलब चिपका हुआ. Closely oppressed to the substratum. Closely oppressed to the substratum. Example, Graphis lecanora, Rhizocarpon, Graphis lecanora, Rhizocarpon, etc. Graphis lecanora, Rhizocarpon, etc. See, second लिखिए, folios. Second is folios. Here lichen thallus is here.
lichen thallus is leaf-like. Here lichen thallus is leaf-like. ठीक है? Example, Parmelia. Example, Parmelia, Parmelia. ठीक है? Next, fruticose. Next is fruticose. Here lichen thallus is extensively branched. Where lichen thallus is extensively branched. Example, Usnea, Usnea. Example, Usnea. ठीक? Now, next लिखिए structure associated with, next heading लिखिए structure associated with lichen thallus. Next heading is structure associated with lichen thallus. ठीक है? पहला rhizine, rhizine, RHIZINE. ठीक है? राइजीन क्या होता है? ठीक है, ये राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर है. राइजीन जो है इट इज ए राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन अटैचमेंट. Pradhan, it is rhizoid like structure. It is rhizoid like structure which helps in attachment to substratum, which helps in attachment to substratum. ठीक है? Now, second, Isidia, ISIDIA, Isidia. Isidia क्या होता है? It is finger-like projection on lichen thallus. Lichen के thallus पे ऐसे finger-like projection होगा. इसका मेन जो काम होता है is to increase the surface area. मेन काम क्या है? To increase the surface area. But अगर ये डिटैच कर गया थैलस से, अलग हो गया थैलस से टूट के, and if conditions are favorable, then it will germinate to form new thallus. So done. It is finger-like projection. It is finger-like projection present on lichen thallus, which increases
which increases surface area of absorption, which increases surface area of absorption. And when it gets detached from thallus, when it gets detached from thallus and conditions are favorable, then it germinates to form new thallus. When it gets detached from parent thallus and conditions are favorable, then it germinates to form new thallus. It germinates to form new thallus. ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. ओके. थर्ड, सिफेली. सिफेली, CEPHALLE, सिफेली. ठीक है. तो सिफेली क्या होता है? जैसे लीफ के सरफेस पे स्टोमेटा होता है, वैसे ही लाइकेन के सरफेस पे सिफेली होता है. That means it is an stomata-like opening present on lichen thallus and it helps in gaseous exchange. ठीक है, write down. It is stomata-like opening. It is stomata-like opening present on lichen thallus. Stomata-like opening present on lichen thallus, where it helps in gaseous exchange. Where it helps in gaseous exchange. ठीक है ना? फोर्थ, सिफेलोडिया. CEPHALODEA, सिफेलोडिया. इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन रिटेनिंग मॉइस्चर इन लाइकन थैलस. ठीक है, रडन. इट हेल्प्स इन रिटेनिंग मॉइस्चर इन लाइकन थैलस. इट हेल्प्स इन रिटेनिंग मॉइस्चर इन लाइकन थैलस. मॉइस्चर इन लाइकन थैलस. फिफ्थ लिख लिए, लास्ट, सोरिडिया. Last is Soredia. It is asexual spore. It is asexual spore and production of Soredia is most efficient way of reproduction in lichen.
ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। ओके, हाँ कशिश बताओ, क्या पूछ रहे हो? कशिश वर्मा, क्या पूछना है बताओ तो सही। अच्छा, गलती से ना। नेक्स्ट हेडिंग इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकन। आप लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा हुआ इकोसिस्टम में, ठीक है, 12th में, तो उसमें पढ़ा होगा कि रॉक पे भी, बेयर रॉक पे भी सक्सेशन होता है, ठीक है। तो जब भी बेयर रॉक पे सक्सेशन होगा ना, तो जो हमारा पायनियर कम्युनिटी होगा वो हमेशा क्रस्टोज लाइकेन होगा। क्यों क्रस्टोज लाइकेन होगा? क्योंकि क्रस्टोज लाइकेन जो है, इट कैन प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड क्या करेगा? इट विल कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक को तोड़ेगा, और जब रॉक टूटेगा तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, और सॉइल अगर रॉक पे बना तो फिर अदर कम्युनिटी आ सकता है। राइट ऑन, फर्स्ट इंपॉर्टेंस लिखिए। पहले दो इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, आगे भी आएगा, ठीक है। राइट ऑन, क्रस्टोज लाइकेन acts as crustose lichen acts as pioneer community crustose lichen acts as pioneer community when ecological succession takes place on rock, when ecological succession takes place on rock, as they can produce carbonic acid, as they can produce carbonic acid which is responsible for weathering of rock, which is responsible for weathering of rock, thus helps in formation of soil, thus helps in formation of soil। ठीक है, देख लिया ना। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है ही। लाइकेन जो है, इट एक्ट्स एज पोल्यूशन इंडिकेटर, स्पेशली फॉर SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, as it disappear from polluted area। क्यों डिसअपियर करता है? देखो, जो क्लोरोफिल ए है उसका जब आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें सेंटर में एक Mg एटम होता है और ऐसे करके 4 रिंग होते हैं, टेट्रापायरोल कहते हैं इसको, ठीक है। एंड देयर इज ए 20 कार्बन चेन टेल, ठीक है। ये जो SO है, ठीक है, this SO2 is responsible for removal of this Mg from क्लोरोफिल ए। तो इस क्लोरोफिल ए से जब Mg रिमूव हो जाएगा
तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर है उसको हम लोग कहते हैं फियोफाइटीन। ये भी हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, ठीक है, फियोफाइटीन। और इस प्रोसेस को कहते हैं फियोफाइटाइजेशन। और अगर फियोफाइटाइजेशन हो गया तो ये नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो लाइकेन खाना नहीं बना पाएगा, और खाना नहीं बनेगा तो वहां से गायब हो जाएगा। समझ में आया सबको? ये पॉइंट सबको समझ में आया? मैडम, lichen acts as pollution indicator. Lichen acts as pollution indicator, especially for SO2, especially for SO2, as it disappears from polluted area, as it disappears from polluted area. Next one लिखिए। SO2 is responsible for SO2 is responsible for phiophytization of chlorophyll A. SO2 is responsible for phiophytization of chlorophyll A, that is removal of Mg, removal of Mg from chlorophyll A, removal of Mg from chlorophyll A. ठीक है, हो गए? समझ में आ गया सबको ना? आप सबने लिटमस पेपर सुना होगा जो एसिड बेस टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो लिटमस पेपर में जो हम लोग डाई यूज करते हैं, दैट डाई इज ऑर्चिल। और ये जो ऑर्चिल डाई है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए लाइकेन रोसेला टिंक्टोरिया। मैडम, डाई ऑर्चिल which is used for diorchil, which is used for making litmus paper, is obtained from a lichen Rossella tinctoria. Diorchil, which is used for making litmus paper, is obtained from lichen Rossella tinctoria. ठीक है ना? पोलर एरिया में रेंडियर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। रेंडियर ट्रैवलिंग में हेल्प करता है, फूड है, क्लोथिंग में उसका लेदर यूज करते हैं, मतलब बहुत कुछ उसका रोल है। और रेंडियर बिना एक लाइकेन के वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता, जिसको हम लोग कॉमनली रेंडियर मॉस कहते हैं। एंड रेंडियर मॉस इज क्लैडोनिया रेंजीफेरा। राइट डाउन, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए लाइकेन का।
Lichen Cladonia rangifera, lichen Cladonia rangifera is commonly known as reindeer moss. Lichen Cladonia rangifera is commonly known as reindeer moss. ठीक है. Next heading is virus. Next heading is virus. ठीक है. ये जो टर्म वायरस है, इट वॉज कॉइन्ड बाय पास्चर. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. टर्म वायरस वॉज कॉइन्ड बाय term virus was coined by Pasteur, which means venom or poisonous fluid. ठीक है. ना वायरसेस जो होते हैं, दे आर नॉन सेलुलर. दे आर नॉन cellular obligate parasite. Read. Viruses are non-cellular obligate parasite. Obligate parasite का मतलब they can multiply only inside the host cell. Viruses are non-cellular obligate parasite and present in form of inert crystals, present in form of inert crystals outside the host cell. Inert crystals outside the host cell. ठीक. हम वायरसेस को थ्रेशोल्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं. थ्रेशोल्ड का मतलब क्या हुआ? नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग. ठीक है. क्योंकि ये लिविंग का भी कैरेक्टर शो करता है और ये नॉन लिविंग का कैरेक्टर भी शो करता है. राइट. वायरसेस आर रिफर्ड एज, कौन सा फर्स्ट पॉइंट रिपीट करूं शिवम? मुझे क्या पता मैंने कौन सा फर्स्ट पॉइंट बोला था, मेरे को याद करके थोड़ा ना होता. राइट. Viruses are threshold organism. Viruses are threshold organism. That is, they show characteristic of both living and non-living. They show characteristic of both living and non-living. ठीक है. तो क्या कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग और नॉन लिविंग का? फर्स्ट लिख लीजिए लिविंग कैरेक्टर. बहुत सारे मैं दो बताऊंगा, दोनों के बताऊंगा. फर्स्ट रीड लिविंग कैरेक्टर. लिविंग कैरेक्टर. ठीक. फर्स्ट लिखिए, दे आर होस्ट स्पेसिफिक. दे आर होस्ट स्पेसिफिक. इसका मतलब क्या हुआ? दे कैन रिकॉग्नाइज देयर होस्ट. अपने होस्ट को ये पहचान सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट दे आर होस्ट स्पेसिफिक. ठीक है.
सेकंड सेकंड पॉइंट लिखिए। एक टेक्निक होता है ऑटोक्लेविंग, ठीक है। ऑटोक्लेविंग क्या है, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, वैसे ही एक इक्विपमेंट होता है। बस इसमें यह है कि आप प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं, सीटी नहीं लगा होता, शरीफ होता है, सीटी नहीं मारता है। तो आप हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। एंड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर थिंग्स आर स्टरलाइज्ड। जैसे ऑपरेशन थिएटर वगैरह में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, या टिश्यू कल्चर में जितने इक्विपमेंट यूज करते हैं हम लोग, सारे ऑटोक्लेव करते हैं, ताकि उसमें कॉन्टामिनेंट नहीं रहे। और ये ऑटोक्लेविंग जो है, ये वायरस को भी मार देता है। तो इफ यू आर एबल टू किल समथिंग, दैट मीन्स इट इज लिविंग, ठीक है। प्रणम, viruses can be killed by viruses can be killed by autoclaving. नहीं, कोरोना वायरस को तो मार सकते, तो क्या इंसान को ऑटोक्लेव में डाल दीजिएगा? हाँ, क्यों नहीं मार सकते? कैसे मारिएगा? पकड़ पकड़ के एक एक ले जाकर ऑटोक्लेव में डालिएगा। हम्म, एक एक कोरोना वायरस को पकड़िए और जाके ऑटोक्लेव में डालिए, या इंसान जिसके अंदर, उसी को ऑटोक्लेव में डाल दीजिए। यही तो वो ऑप्शन है ना। ना, नेक्स्ट इज नॉन लिविंग फीचर्स। नॉन लिविंग फीचर्स, नॉन लिविंग फीचर्स। फर्स्ट लिखिए, दे रिक्वायर होस्ट फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन। अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इनको होस्ट चाहिए। अरे ऑटोक्लेव सिद्धार्थ एक इक्विपमेंट होता है जिसमें हम लोग चीजों को स्टरलाइज करते हैं द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ऑटोक्लेविंग करके आप वायरस को मार सकते हैं। तो अगर आप किसी चीज को मार पा रहे हैं, मतलब वो जिंदा था ना, तभी तो आप मार पाए। अगर लिविंग नहीं होता तो कैसे उसको डेड करते? ठीक है, डन। नॉन लिविंग फीचर्स, फर्स्ट लिखिए, दे रिक्वायर होस्ट फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन। दे रिक्वायर होस्ट for their multiplication. Second, they are present in form of inert crystals. They are present in form of inert crystals outside the host cell. They are present in form of inert crystals outside the host cell. कोई भी लिविंग चीज जो है ना, वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। किन किन लोगों ने वायरस में दिमाग लगाया और फिर हमारा दिमाग खराब किया उन लोगों ने। राइट डाउन हेडिंग, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ठीक है, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिखिए, इवानोस्की। IVANOWSKY। हाँ भाई, कोविड की वैक्सीन आ गई, बट अभी फाइनल अप्रूवल नहीं आया, अभी टाइम लगेगा। अभी इंडिया में तो आप मान के रखिए फरवरी मार्च में आएगा। चलिए, इवानोस्की। कहाँ टॉपिक चेंज कर देते हो? इवानोस्की, इसने क्या देखा, ठीक है, कि टोबैको में एक डिजीज होता है, दैट इज मोज़ैक डिजीज, ठीक है। He observed that organism responsible for this mosaic disease in tobacco can pass through bacterial proof filter.
That means it is smaller than bacteria. And he was also responsible for discovery of TMV, that is tobacco mosaic virus. ठीक? Pradhan, he observed that he observed that organism responsible for organism responsible for mosaic disease, organism responsible for mosaic disease in tobacco can pass through bacterial proof filters, can pass through bacterial proof filters. That is, it is smaller than bacteria. It is smaller than bacteria, and he is responsible for discovery of TMV. He was responsible for discovery of TMV, that is tobacco mosaic virus. Second लिखिए, Bezerink. Second, Bezerink. ठीक है, इसने वायरस के लिए एक टर्म यूज किया, एंड दैट टर्म वाज कंटेजियम वाइवम फ्लूडम. Contagium vivum fluidum for virus. That is, viruses are living infectious fluid. Pradhan, he used term contagium vivum fluidum. He used term contagium vivum fluidum for virus, for virus. That is, viruses are living infectious. That is, viruses are living infectious fluid. Viruses are living infectious fluid. ठीक है, इसने क्या किया, एक प्लांट जो कि टोबैको मोज़ाइक वायरस से इन्फेक्टेड था, उसका लीफ लिया, ठीक है, उसको क्रश किया, उससे जो जूस निकला, सैप जो निकला, उसको ले जाके एक हेल्दी प्लांट के सरफेस पे रब कर दिया. देखा इन कोर्स ऑफ टाइम दैट हेल्दी प्लांट also developed the symptom of TMV, tobacco mosaic virus. Tradon, he observed that when sap from an infected plant is rubbed on leaf surface of healthy plant, in course of time
Healthy plant also develops symptom. Healthy plant also develops symptom. ठीक. Now, next is third is Stanley. Third is Stanley. Okay. स्टैनले जो था वो पहला आदमी था जिसने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और उसने क्या देखा. हाँ, टीएमबी वाज द फर्स्ट वायरस डिस्कवर्ड. ठीक है. उसने क्या देखा, जो क्रिस्टल्स है दैट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन. थर्ड, he was the first person to crystallize virus. He was the first person to crystallize virus and and observed that crystals are mainly composed of protein. Crystals are mainly composed of protein. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू. He was the first person to crystallize virus. He was the first person to crystallize virus and observed that crystals are mainly composed of protein. Crystals are mainly composed of protein. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.